رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزو، ابھی ہم پرانے عہد نامے میں سے یسایہ نبی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ پہلی نبوتی کتاب ہے اور ہم اس کے 17ویں اور 18ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ آج کے پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ آپ سب تیار ہیں؟ آپ نے یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کیا؟ خداوند آپ کو برکت دے۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ۔ 17واں باب اور 18واں باب۔ ہمیں 17ویں باب کا عنوان بتائیے۔ 17واں باب دمشق کی بابت بارے نبوت۔ بارے نبوت یعنی کہ دمشق کے بارے میں نبی کو ایک بھارا پیغام ملا۔ دمشق کے متعلق جی۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ دمشق کی بابت بارے نبوت۔ دیکھو، دمشق اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ کھنڈر کا ڈھیر ہوگا۔ ار کی بستیاں ویران ہیں اور گلوں کی چراگاہیں ہوں گی۔ وہ وہاں بیٹھیں گے اور کوئی ان کے ڈرانے کو بھی نہ ہوگا۔ اور افرایم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا۔ دمشق اور ایرام کے بقیہ سے سلطنت جاتی رہے گی۔ رب الافواج فرماتا ہے، جو حال بنی اسرائیل کی شوکت کا ہوا وہی ان کا ہوگا۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ عدالت ہوگی۔ یہاں دمشق اور افرایم کا ذکر ہے۔ افرایم اور دمشق میں کیا تعلق موجود ہے؟ جیسا کہ ہم چوتھی آیت پر پہنچے، اس میں لکھا ہے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ یعقوب کی چشم گھٹ جائے گی اور اس کا چربی دار جسم دبلا ہو جائے گا۔ یہاں پر یعقوب کا کیا کام ہے؟ اس نے دمشق کی بات کی۔ اس کا جواب ہمیں 7ویں باب میں ملتا ہے، اور ہم نے پڑھا کہ ارام کے بادشاہ اور 10 قبیلوں نے مل کر آخذ بادشاہ کی سلطنت اس سے چھین لی صحیح۔ تاکہ وہاں کسی اور کو لائیں۔ یہ آخذ کی بھلائی نہیں تھی، کیونکہ آخذ شریر شخص تھا۔ خدا نے داؤد کے گھرانے کا ساتھ دیا، اور خدا نے وعدہ کیا کہ اس کی نسل میں سے ایک اس کے تخت پر بیٹھے گا۔ پر افسوس کہ 10 قبیلے اس سے جڑے ہوئے تھے، حالانکہ اس میں ان کا کوئی کام نہ تھا۔ انہوں نے باقی دنیا کا ساتھ دیا، اور اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب خدا کے لوگ دنیا سے جڑیں تو خدا ان سے باقی دنیا ہی کی طرح پیش آتا ہے۔ اور اس کی واضح تصویر ہمیں سردیس کی کلیسیا کے نام لکھے پیغام میں ملتی ہے۔ اور مکاشفہ 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ خداوند کلیسیا کے پاس چور کی طرح نہیں آئے گا، بلکہ وہ یوں آئے گا کہ تو بھی افسوس کہ کلیسیا کے ساتھ دنیا جیسا سلوک ہی کیا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں گم ہیں۔ جی بالکل صحیح کہا۔ صحیح۔ 7ویں آیت میں یہ الفاظ لکھے ہیں، یسایہ 17واں باب 7ویں آیت، اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نظر کرے گا اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی، اور وہ مذہبوں یعنی اپنے ہاتھ کے کاموں پر نظر نہ کرے گا، اور اپنی دستکاری یعنی یسیرتوں اور بتوں کی پرواہ نہ کرے گا۔ اس وقت اس کے فصیلدار شہر اجڑے جنگل اور پہاڑ کی چوٹی پر کے مقامات کی مانند ہوں گے جو بنی اسرائیل کے سامنے اجڑ گئے، اور وہاں ویرانی ہوگی۔ بھائی یوسف، بظاہر اس نے بحالی اور لوٹ آنے کی بات کی۔ ہمیں بتائیے یہ سب مستقبل میں کس طرح پورا ہوگا؟ یہاں پر اس نے دیندار کے مصیبت میں ہونے کی بات کی، یعنی مشکل وقت میں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت سب سے بڑی طاقت پر بھروسہ کرے، اور اس وقت حیوان طاقتور ہوگا، اور پھر اس کے بعد دیندار اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نگاہ کرے گا، اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی۔ اور زبور 121 میں لکھا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ نہیں، وہ اپنی آنکھوں کو کس طرف اٹھاتے ہیں؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ بھائی یوسف، کیا وہ لوٹ آئے؟ یقیناً وہ لوٹ آئے۔ اب مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ میرا سوال 10ویں آیت سے ہے، کیونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا۔ یسایہ کی کتاب بلکہ پرانے عہد نامے میں نجات کا نظریہ کیا ہے؟ نجات کس سے ملتی ہے؟ مصیبت سے، گناہ سے، کس چیز سے نجات ملتی ہے؟ اس کو واضح فرما دیجئے۔ جی خدا نجات کا خدا ہے۔ لکھا ہے تو نے اپنے نجات دینے والے خدا۔ جی۔ مارک نے پوچھا نجات کس قسم کی ہے؟ لوکا کی انجیل کے پہلے باب میں زکریا کا گیت موجود ہے۔ پہلے باب میں 77 آیات ہیں تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔
पुराने अहदनामे में ऐसी कोई वजाहत नहीं कि गुनाहों से निजात बल्कि मुसीबतों से निजात मिलती है। जब खुदावंद ने मुल्क मिस्र से अपने लोगों को निकाला तो उसने उनको गुलामी, तज़हीक और कोड़ों से बचाया। चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के बिल्कुल। काम देखो। ये नए अहदनामे में मौजूद है कि गुनाह के सबब से बेइज्जती और इंसान की तज़हीक होती है। हालांकि पुराने अहदनामे में मुसीबतें, बीमारियां, दुश्मन और जंगें थीं। ये पुराने अहदनामे की निजात है जिसको हम रूहानी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुनाह से इत्मीनान, सेहत और इज्जत जाती रहती है। सही। 10वीं आयत है, चूंकि तूने अपने निजात देने वाले खुदा को फरामोश किया और अपनी तवानाई की चट्टान को याद ना किया, इसलिए खूबसूरत पौधे लगाता और अजीब कलमे इसमें जमाता है। लगाते वक्त उसके गिर्द अहाता बनाता है और सुबह को उसमें फूल खिलते हैं, लेकिन उसका हासिल दुख और सख्त मुसीबत के वक्त हेच है। भाई यूसुफ, 10वीं आयत में जो लिखा है इसके मुतालिक हमें बताइए। इसके मानी मौजूदा कलीसिया और आसमान पर उठाए जाने के बाद के हैं। कौम लौट आई। यकीनन ये नस्लों का ख्वाब है और यकीनन वो खुदा पर तकिया करते हुए नहीं लौटे। ये अदम ईमान है। अदम ईमान। चुनाचा तूने अपने निजात देने वाले खुदा को फरामोश किया और अपनी तवानाई की चट्टान को याद ना किया, इसलिए तू पौधा लगाएगा। वो होशियारी और दलेरी के साथ लौटे और उनके पास अकल व माल और दौलत ना थी। उनके पास क्या कमी थी? सबसे अहम चीज की कमी थी कि वो खुदा की तरफ देखते और तौबा करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाई यूसुफ, आप ये कहना चाहते हैं कि अब उन लोगों को जो उस मुल्क में हैं, कदीम जमाना के लोगों पर खुदा रहम नहीं करता, या वो उनसे राजी नहीं, खुदा को हरगिज़ उनके नहीं। काम पसंद नहीं, जी नहीं। वो दूसरों को कत्ल करते हैं। दुनिया की सब कौमें ऐसा ही करती हैं। तो भी जब हम उन लोगों और खुदा की बात करें तो जो दिल से तौबा करता है वो मुस्तकबिल में मसीह की बादशाही में शामिल होगा। बिल्कुल। ठीक है? जी। यहाँ लिखा है कि लगता है वक्त उसके गिर्द अहाता बनाता है और सुबह को उसमें फूल खिलते हैं, पर कोई बरकत नहीं। लेकिन इसका हल दुख और सख्त मुसीबत के वक्त हेच है। और मैं कहूंगा कि यही बात अगले बाब की 4-6 आयात में लिखी है। उसने ये बात दोहराई है कि ये मंसूबाबंदी करते हैं और ये इंसानी हकूक के मुआफिक अच्छे इंसान होने चाहिए, पर ऐसा नहीं, क्योंकि सबसे अहम चीज ये है उन्होंने खुदा के बेटे के खून बहाने के गुनाह का इकरार नहीं किया। भाई यूसुफ, आज बहुत सी कौमें मौजूद हैं, लेकिन वो बेफल हैं। जैसे अंजीर पर पत्ते हों पर उस पर फल ना आए। वो खुदावन से हकीकी इकरार और दिल से तौबा नहीं करते। ठीक कहा? देखिए, दरअसल मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन उनके मंसूबे नाकाम होते हैं और उनकी ख्वाहिश कि वो सबसे बेहतरीन हो पूरी नहीं होती। उनकी तौबा के बगैर ये मुमकिन नहीं। हम आगे ये पढ़ेंगे। हम 18वें बाब की 4-6 आयत में इसके बारे में पढ़ेंगे। सही। अब हम 12वीं आयत देखेंगे। बहुत से लोगों का हंगामा है जो समुंदर के शोर की मानंद शोर मचाते हैं, और उम्मतों का धावा बड़े सैलाब के रेले की मानंद है। उम्मतें सैलाब अजीम की तरह आ पड़ेंगी, पर वो उनको डांटेगा और वो दूर भाग जाएंगे। और उस भूसे की तरह जो टीलों के ऊपर आंधी से उड़ता फिरे, और उस गर्द की माने जो बगोले में चक्कर खाए, रगेदी जाएगी। शाम के वक्त तो हैबत है, सुबह होने से पेशतर वो नाबूद है। ये हमारे गारतगरों का हिस्सा और हमको लूटने वालों का बकरा है। भाई यूसुफ, हंगामा, समंदर, सैलाब अजीम, उम्मतें और लोग, ये सब क्या सिखाते हैं? हम ये ना भूलें कि इस बाब का उन्वान दमिश्क की बाबत बारे नबूवत है, और दमिश्क मुस्तकबिल में शुमाली बादशाह या असूर के बादशाह का हिस्सा है। असूरियों की सल्तनत कोई आसान नहीं, वो एक बड़ा मसला है। लिखा है, बहुत से लोगों का हंगामा है जो समंदर के शोर की मानंद शोर मचाते हैं। वो बड़े लश्कर के साथ आते हैं और ये वाकई ही खौफनाक है। और लिखा है, शाम के वक्त तो हैबत है और सुबह होने से पेशतर वो नाबूद हैं, यानी रात में। तारीखी लिहाज से हमें शाह असूर सनखरब की जिंदगी में उसका मंजर दिखाई देता है। उसके पास बड़ा लश्कर था और 1,85,000 मर गए। तो लश्कर कितना बड़ा होगा? तो जब एक ही रात में 1,85,000 मर गए तो वो शर्मिंदगी से वापस लौट आया। और मुस्तकबिल में यही होगा कब? जब मसीह आएगा और लोग उस कौम के खिलाफ इकट्ठा हुए और मसीह आएगा। इब्रानियों 9 में लिखा है, इब्रानियों 9 की आखिरी आयत, दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं।
मसीह के ज़मीन पर होते हुए उसकी अलामती तस्वीर मौजूद है। और फिर मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि रात के चौथे पहर यीशु मसीह उनके पास पानी के ऊपर चलता हुआ आया और उन्होंने देखा कि मसीह के कश्ती पर आते ही सारी हवा और समंदर का सारा शोर एक लम्हे में खत्म हो गया। और ना सिर्फ शोर खत्म हो गया बल्कि कश्ती जमीन पर आ गई। और ये एक अलामती तस्वीर है कि दर हकीकत मुस्तकबिल में क्या होगा। और बाकी बचे लोग समंदर के बीच होंगे और वो वापस ना आ सकेंगे। शाम के वक्त हैबत है और सुबह होने से पहले चीजें बेहतर हो जाती हैं क्योंकि मसीह उस कश्ती में सवार हो जाता है। मसीह अपने जलाल और कुदरत के साथ जमीन पर आएगा और जो उसको कबूल करेगा वो बच जाएगा। और भाई यूसुफ, हमें 18वें बाब का उन्वान बताएं, इसमें किस बारे में बात हुई? देखें, इसमें इसराइल के मुल्क में लौटने की बात हुई है। ये सब खुदा की कुदरत से हुआ और ये इस बाब की बातों की सबसे सादा सी वजाहतों में से एक है। लोगों का मुल्क में वापस जाना गैर फितरी कुव्वत की मदद से। जी, इस बाब में लिखा है, आह परों के फड़फड़ाने की सरजमीन जो कूश की नदियों के पार है, जो दरिया की राह से बर्दी की कश्तियों में सतह आप पर एलची भेजती है। ए तेज रफ्तार एलचियो, उस कौम के पास जाओ जो जोरावर और खूबसूरत है, उस कौम के पास जो इब्तिदा से अब तक मुहिब है, ऐसी कौम जो जबरदस्त और फतहयाब है, जिसकी जमीन नदियों से मुनकसिम है। ए जहान के तमाम बाशिंदों और जमीन के रहने वालों, जब पहाड़ों पर झंडा खड़ा किया जाए तो देखो, और जब नरसिंगा फूंका जाए तो सुनो। परों के फड़फड़ाने की सरजमीन के क्या मानी है, इन अल्फाज का मतलब बताएं। परों के फड़फड़ाने यानी परों का साया, और इसके मानी है मुहाफजत। परों के फड़फड़ाने की सरजमीन कूश की नदियों के पार। कूश की नदियां जो दरियाए नील और दरियाए फरात हैं। दर हकीकत मैं कहूँगा कि ये वही इलाका है जहाँ पर ये कौम रही, और इन दो दरियाओं से आगे कोई मुल्क नहीं था, फरात और कूश और नील। पर मुस्तकबिल में ये कौमें, मैं कहूँगा, आलमी कुव्वत बन जाएंगी। नदियों के पार यानी बहुत दूर। वहाँ उस कौम के लोग नहीं जाते थे और कुछ कहते हैं कि वो दरअसल इंग्लिस्तान है, जहाँ 1917 में मशहूर बेलफोर डिक्लेरेशन हुई। और मैं कहूँगा कि कुछ कहते हैं कि अमेरिका के पास दरअसल ताकतें मौजूद हैं कि इसराइल की हिफाजत हो सके। भाई यूसुफ, हम चौथी आयत पर चलते हैं। आप हमें चौथी से छठी आयत पर अपनी राय दीजिए। क्योंकि खुदावन ने मुझसे यूं फरमाया कि मैं अपने मस्कन में ताबिश आफताब की मानिद और मौसम दरों की गर्मी में शबनम की बादल की तरह सुकून के साथ नजर करूंगा। भाई यूसुफ, मुझे चौथी से छठी आयत पर अपनी राय दीजिए। भाई अयाद, हम कहते हैं कि आयत 4 ता 6 को ब्रैकेट्स में बंद करें ताकि इनको बेहतर जान सकें। उसने तीसरे बाब में कहा, ए जहान के तमाम बाशिंदों और जमीन के रहने वालों, जब पहाड़ों पर झंडा खड़ा किया जाए यानी जब खुदा निशान दिखाए तो सुनो। इससे हमें मत्ती के 24वें बाब के कुछ अल्फाज याद आते हैं, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगुज़ीदाओं को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। सातवीं आयत उस वक्त आगे लिखा बिल्कुल है। उस वक्त रबुल फाज की हजूर उस कौम की तरफ से जो जोरावर और खूबसूरत है हदिया भेजा जाएगा। और यहाँ नीचे के अल्फाज खुदावंद के मौजूदा दौर की सूरत हाल को जाहिर करते हैं। क्या वो इस सूरत हाल से खुश है? सुकून के साथ नजर करूंगा। बिल्कुल, वो सिर्फ देख रहा है और बराह रास्त इसमें शामिल नहीं होता, पर वक्त आने पर वो इसमें शामिल होगा। हमने जैतून के पहाड़ की तालीम सीखी और लिखा है, अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। एक वक्त आएगा कि हमारी ये सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और हर मजदून की जंग होगी, तब दुनिया सारी तबाह हो जाएगी और उस वक्त खुदा जाहिर होगा। और इसीलिए अभी खुदावंद इंतजार कर रहा है। क्यों? ताकि लोग बेदीनी से निकलकर लौट आएं। इसलिए खुदा मदाखलत नहीं करता, पर वो दीनदार बकिया की खातिर वापस आएगा जो उस पर भरोसा करते हैं और उसके मुंतजिर हैं। और मैं कहूँगा कि फिर उस कौम के साथ क्या होगा। इसीलिए 5वीं आयत में लिखा है कि फजल से पेशतर जैसे किसान अपना बीज बोकर
सारा मौसम फसल के दिन का इंतजार करता है। फसल की उम्मीद फसल में। की उम्मीद, क्योंकि फसल से पेशतर जब कली खिल चुके और फूल की जगह अंगूर पकने को हों तो वो टहनियों को हंसुए के काट डालेगा और फैली हुई शाखों की छांट देगा, और वो पहाड़ के शिकारी परिंदों और मैदान के परिंदों के लिए पड़ी रहेंगी, और शिकारी परिंदे गर्मी के मौसम में उस पर बैठेंगे और जमीन के सब दरिंदे जाड़े के मौसम में उन पर लौटेंगे। और मैं कहता हूं कि इसराइली रहनुमा का ख्वाब पूरा नहीं होगा। और शुमाली बादशाह यूएल 3 बाब के मुताबिक उनके आगे जमीन बागी अदन की मानिंद है और उनके पीछे वीरान बियाबान है, क्योंकि उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, और जो अपने गुनाहों से तौबा ना करे तो वो कुछ भी कर ले, पूरी दुनिया भी उसके साथ हो पर खुदा उसके साथ नहीं होता और वो किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकता। सही। 1-3 आयत में हमने इसके मुतालिक पढ़ा, फिर 7वीं आयत में खुदा इस मामले में आता है। 4-6 आयत में खुदा ने देखा लेकिन कुछ मुदाखलत नहीं की, दखल नहीं दिया, उसने कुछ न कहा। जब खुदा उस मामले में दाखिल होता है, लिखा है उस वक्त रब्बुल अफ़वाज के हजूर उस कौम से जो जबरदस्त और जफर याब है एक हदिया पहुंचाया गया। यहाँ लिखा है उनकी तरफ से हदिया पहुंचाया गया। क्या खुदा उन लोगों से राजी था? वो खुद ही हदिया है। वो खुद ही हदिया है। वो खुदावंद को हदिया नहीं देते, बल्कि वो खुद हदिया हैं जो खुदा के दिल को, मैं कहूंगा कि खुश करते हैं। खुदा की खुशी लोगों से है, उन लोगों से यकीनन। और जब वो तौबा करके वापस लौट आए तो वो हदिया हैं। उसको किस बात का इंतजार है? क्या यूसुफ को अपने भाइयों से तोहफे की तवक्को थी? वो इसलिए कुछ पिस्ते और कुछ चीजें लाए, लेकिन उसे किसी चीज की जरूरत ना थी। वो चाहता था उसके भाई तौबा करें, यही उसके लिए तोहफा था। नए अहदनामे में पौलुस रसूल ने ईमानदारों के ग्रोह के लिए कहा कि उन्होंने अपना आप खुदा को दिया। उन्होंने हदिया दिया, बल्कि वो खुदा उनके हुजूर ताकि गैर कौमों में नजर के तौर पर मकबूल हो जाएं। दरअसल गैर कौमों की नजर के मानी क्या हैं? क्या गैर कौमें खुदा के हुजूर नजर गुजरानते हैं? वो खुद कुर्बानी है। इसका जिक्र रोमियो 15वें बाब में हुआ। सही। चलिए मेहमानों से उनका सवाल जानते हैं। 7वीं आयत, उस वक्त रब्बुल फ़ौज के हजूर उस कौम की तरफ से जो जोरावर और खूबसूरत है हदिया पहुंचाया जाएगा। जोरावर और खूबसूरत का क्या मानी है? जी भाई, जोरावर और खूबसूरत के क्या मानी है? जी, दूसरी आयत में इसका जिक्र हुआ। उसने कहा, ए तेज रफ्तार एलचियो, उस कौम के पास जाओ जो जोरावर और खूबसूरत है। यहाँ लोग जोरावर और लोग खूबसूरत हैं, और डरबी तर्जुमे में उन लोगों को स्कैटर्ड लिखा है। वो ऐसे लोग हैं जिनमें से कुछ लोग, मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड और स्कीमो और बाकी ब्राजील में पाए जाते हैं। बटे हुए। वो पूरी दुनिया में फैले हैं, और ये जोरावर और खूबसूरत के मानी हैं। या बंजर, जिसका मतलब तबाहाल है, यानी लोगों ने कितनी मर्तबा उसको तबाह किया। और उस कौम से जो कि ज़बरदस्त है, शुरू ही से लोग उस कौम से डरते थे, और वो इस बात से जो कुछ मूसा ने मिस्र में किया उससे डरते थे। और जब केनान के लोगों ने सुना, और जब फहाशा राहब ने कहा, ये सब सुनते ही हमारे दिल पिघल गए। मूसा ने खरूज के 15वें बाब में फरमाया, कौमें सुनकर थर गई हैं और फिलिस्तीन के बाशिंदों पर आ बनी है। और इसी तरह बाकी तमाम कौमों के लोग भी उससे डरते थे। मैं चाहता हूं कि आप परों के फड़फड़ाने पर अपनी हतमी राय दें। आपने कहा कि परों का फड़फड़ाना यानी उनको फैलाना, ये हिफाजत को जाहिर करता है। माजी में उन लोगों का ताल्लुक परों से रहा है। उनके घरों पर खुदा ने अपने परों को फैलाया। मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। जब मसीह आया तो उसने कौमों को बुलाया, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, इसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं। इसके नतीजे में उनके साथ ये सब हुआ। हमें इसके मुतालिक बयान करे। खुदा चाहता था कि उन लोगों को बचा ले। उसने उनको कैसे बचाया, और मजीद ये कि आखिर में लोग किस तरह बच सकते हैं। भाई यूसुफ, मसलन बॉयज ने मुआबी रूत से एक खूबसूरत बात कही, खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह लेने आई है। खुदा हमें बचाना चाहता है। कोई महफूज नहीं रख सकता। कोई महफूज नहीं रखता, लेकिन कुछ भी नहीं। क्या? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। जो ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साये में सुकूनत करेगा, उसके परों के साये में। और ये वो हैं जो उसके परों के नीचे पनाह लेते और उसमें खुश रहते हैं। सही। उसने खून से उनकी हिफाजत की। हिफाजत का ताल्लुक खून से है। बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। हम जानते हैं कि 17वें बाब में दमिश्क की बाबत बारे नबूवत है। ये उसकी अदालत है। इसमें दमिश्क और इफ्राइम का जिक्र है। इफ्राइम और
दमिश्क में क्या ताल्लुक मौजूद है? हमने 7वें बाब में देखा कि शाह असूर ने शाह इसराइल के साथ इत्तेफाक किया कि यहूदा के बादशाह आखिस के ख़िलाफ़ जंग करें। वो शरीर बादशाह था, पर खुदा को उस वाक़या पर गुस्सा आया क्योंकि वो आखिस के लिए नहीं था। उनका मकसद था कि उस नस्ल को ख़त्म कर दें जिसमें से मसीह को आना है। इसलिए खुदा उन पर गज़बनाक हुआ और उनकी अदालत की। सही। भाई यूसुफ क्या कहेंगे? जी ठीक है, बिल्कुल। यानी हम 7वें बाब को 17वें बाब से जी, जोड़ते हैं ताकि बिल्कुल। इसका पस मंज़र समझ सही। सकें। ठीक है। 18वें बाब में परों के फड़फड़ाने की सरजमीन के लिए लिखा है। परों के फड़फड़ाने के क्या मानी है, वो किन ममालिक से मुखातिब है? परों के फड़फड़ाने का मतलब हिफाजत और पनाह के हैं। कूश का इलाका दरिया नील और फरात के बीच है। इन नदियों के दरियाए पार- नील और जी, दरियाए बिल्कुल फरात के ऐसा पार। ही है। जी, कूश की नदियां जो दरियाए नील और फिरात की हैं। कूश की नदियों के पार यानी उसके आगे वो इलाके हैं जिनका पहले खुदा के लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मौजूदा दौर में ये मुल्क दरअसल मदाखलत करते हैं। वो उन लोगों के लौटने में मदद करते हैं। बिल्कुल, वो सही। सहारा देते हैं। वो उनकी हिफाजत करते हैं। जी ठीक है। उन लोगों का ताल्लुक परों से मिलने वाली हिफाजत से है। हमने पहले भी ऐसी ही बात का जिक्र किया। कोई बता सकता है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद इसराइल के बकिया को किसी मकसद से वापस लाना चाहता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाती है। और बोइज ने रूत से कहा, इसराइल का खुदा जिसके परों के नीचे तू पनाह के लिए आती है। शुरू ही से खुदावन ने अपने पर फैलाकर लोगों की हिफाजत की। जिस दरवाजे पर खून था वो बच गए। वो बच गए। उसने कहा, उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। भाई यूसुफ, बिल्कुल। आखिरी हिस्से पर अपनी जी, राय दें। ये हिफाजत है। खुदावंद हमारा मुहाफिज है और मुबारक हैं वो जो उसमें पनाह लेते हैं। उसके परों के साया में हम महफूज हैं। जी ठीक है, शुक्रिया भाई यूसुफ। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सबका शुक्रिया। अगली किस्त में बहुत अहम मौजू पर हम बात करेंगे। यसाया 19वें बाब पर जो अल्फाज इबादत के गीत में दोहराए जाते रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि वक्त आ गया है या नहीं। मुबारक हो मिस्र मेरी उम्मत। अगली किस्त में इन अल्फाज का तफसीली मुताला करेंगे। खुदावंद आप सबको